साथ ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलर टेलर हिल मौजूद हैं. Okay, Taylor, so you'll be going to the northern areas now, depending on the weather and all, but best of luck for that too. We would like you to tell us that what beauty did you find in this part, especially if you compare it to Australia. What different you liked here in your visit? In Pakistan, I feel like it's such a diverse country. So it has like the mountains, and like I was saying before, it also has like all the history as well, the historical buildings and sites. The difference in Australia is it's a very young country, and it doesn't have as much, I guess, you know, old culture that Pakistan has. And also Pakistan has like the diversity of language, the different dress that people wear, the different foods, and the food is like amazing as well in Pakistan. So there's just so much to see, and it's very unique in itself. So what local food have you tried? Well, my favorite food, I've tried a lot of food, but my favorite is probably biryani, which I think a lot of people love biryani, and like pulao as well. I have a sweet tooth, so I do love all the desserts. So kulfi is one of my favorites, faluda. I love chai, and the chai is also very... Everyone loves chai. Everybody loves chai. So yeah, the food here is amazing as well. And a bit spicy as well. And a bit spicy, yes. Karachi has the extra spice, so... Okay. Taylor, you have visited Karachi, Hyderabad and the other areas. Yep. As a traveller, what had your feelings like? You have all the resources here, or would you like something better over here? In one sense, as a traveller? The resources, the road, the condition of the roads, and the facilities, the hotels, and the food and all. I mean, like, I'd say the hotels are quite good, and I'd say most of like the facilities are quite good. I'd say more for the people themselves, not just for travellers, but just anyone that's in Pakistan and local people that want to travel as well. Yeah, they should invest more. Even just seeing, this is my first time in sort of monsoon season and seeing like the floods and things like that. So probably investing more in the roads would be something. Well, I wish and I pray that this can happen. आप देख सकते हैं कि जो बाहर के भी लोग आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत मुल्क है जी आपका, लेकिन बस अगर सड़कें ठीक हो जाएं तो कितना ही अच्छा हो जाए ना. Okay, Taylor, the population in Australia is not that much as compared to this region, Bangladesh and India and Pakistan. Hailing from a country with lesser population and coming over this region, do you find it a bit awkward? I don't find it awkward. I just think that, I mean, it is a lot more crowded and can be more chaotic. But it also, that's also what people love about it as well. I feel like it brings out the character in each city that you visit. And it's something to love about it, because there's always something happening. Something always going on, and always people about and enjoying the city. And, you know, there's so many restaurants and food stalls, and I feel like here you can go out, like the nightlife here, everyone's out late at night enjoying food, enjoying chai. You know, just sort of enjoying being out and about, whereas back home the nightlife is different. It's a lot more quieter. People and a bit different as well. Yeah. Okay, Taylor, this is your fourth time here? Yes. What brings you here? Like, for the fourth time in Pakistan, is it just the beauty of the country? Is it just the atmosphere, or something else? It's a few things. So, because I've explored a lot around Southeast Asia, and I'd spent a lot of time in India previously, and then obviously Pakistan's neighbouring, so I just had interest in like what is Pakistan like. And what brings me back here is probably, apart from the beauty, I'd say like the people, the hospitality, the kindness, and everyone's just, wherever you're going, people are always willing to help you, especially if you're like as a female traveller or if you're alone.
you just feel comfortable knowing like people are always out there to help, and you meet a lot of people on different paths, and yeah, it's just a really nice place to be. It's beautiful in Albert. So I can see a tattoo on your hand in Urdu. Yes. What is this? It says himmat, so हिम्मत। courage. Yeah. मैं चाहूँगी हम ज़रा जूम करके अगर ये दिखा सकें, ये हिम्मत लिखा हुआ है ये, और कमाल, मतलब आपके देखेंगे ये हिम्मत, जज्बा और जुनून फैसल, ये हम कह रहे होते हैं कि आप अपने अंदर A lot of people have been asking me about this. When did you had this? I actually just got this a few months ago. In Australia. In Australia? Yes. Okay. What's the story behind this? The story behind it is probably a few things, but just being a traveller and being a female traveller alone, you have a lot of experiences. Courage. And yeah, it's just a reminder to take courage, and I just think it's beautiful. So that's why I got it. Travel teaches you a lot. You learn a lot from traveling, and especially when you travel solo. Yes. What have you learned by traveling solo here in Pakistan? What message would you like to give to the people, to the world about this region? So prior to coming here, obviously people like watch the news and they say a lot of things, or even your own family or friends could say like, why are you going there, things like that. But I think coming here myself alone, I think it's taught me to be more open-minded, and just to embrace things, like just embrace different culture and embrace different situations. And also being a female alone, I guess you have more awareness and you learn how to travel better, and what works best for you, because especially being solo, a lot of the time, even though I've met a lot of beautiful friends that have helped me get around Pakistan as well, you always have to just you sort of like pick up on how the culture is, and you try and fit in, and you just try and explore like as a female, rather than just going into a country and thinking like this is how it will be. You need to embrace it and learn how it is first. And Taylor, one last thing, when you are traveling, is it just traveling for fun, for yourself, or are you documenting it and taking pictures for making something, film or documentary? I'm traveling because I enjoy traveling, and also I love blogging. I love sharing about Pakistan and other countries. I love like taking down sort of like stereotypes, and there's a lot of fake news out there, how other countries perceive certain countries. It's nice to be able to share, and then when you go back home, people are like, oh, this is what Pakistan is like. Can I go there? How do I go there? Especially as a solo female, there's a lot of women that will reach out and say like, okay, I want to go to Pakistan. What should I do? How do I go about it? And where should I go? So like I really enjoy being able to share those things with other people, and just sharing Pakistan, because it's still, although tourism is improving, it's still a very underrated country. Like there's so much to see here, and I really hope more people will come here and Thank you so much, Taylor, for coming over here. Already Australia, when it comes to cricket or the sports or the tennis, we have a lot of similarities with the cricket. Okay, but do you follow cricket? I do follow cricket a little bit, A little bit? So, do you follow Pakistani? I've actually watched them play when they came to Australia. So I've been to their games when they've come, like the T20s. And do you remember any name, any favorite cricketer? No, I don't go by the names, but I just like watching them play as a whole, the team. Thank you so much, Taylor, for that last comment. तो हमारे साथ Taylor मौजूद थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, और उनका यही कहना है कि आपका मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, लेकिन क्या करें, सड़कें नहीं हैं। सड़कें नहीं हैं, और अगर सड़कें बन जाए, ज़ाहिर अगर सड़कें नहीं होंगी तो आप ट्रैवल कैसे करेंगे, आप किस तरह से घूमेंगे फिरेंगे। चलें जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं। 28 जुलाई यानी आज दुनिया भर में हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
आपका जिगर आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब जिगर में तकलीफ़ हो या इसे नुकसान पहुँचे तो ये ठीक तरीके से काम नहीं करता और आपको बीमार कर देता है। हेपेटाइटिस की बहुत सारी टाइप्स होती है, लाइक A, B और C। हेपेटाइटिस बीमारी तो ख़तरनाक है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। आज हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर बात करना, इस पे गुफ्तगू करना, सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे आप किस तरह से निमट सकते हैं, डरना आपने बिल्कुल नहीं है। इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों में फैसल अवेयरनेस नहीं है और वो समझते हैं ये कि शायद इसका इलाज मौजूद नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इलाज मौजूद है। लेकिन होता क्या है कि हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फॉर ग्रांटेड लेते 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 ये चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि कभी कभी जो है ये कैंसर की जाने बिल्कुल। तो हेपेटोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जाहिद इमाम साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब स्टैट्स और फिगर्स देखें तो तकरीबन 1,20,00,000 अफराद जो हैं वो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार हैं। हर साल इसमें आई गेस 1.5 लाख केसेस मज़ीद ऐड अप हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये डायग्नोसिस हो रही होती है जिसकी वजह से वो ऐड अप हो रहे होते हैं। लेकिन लकली अच्छी बात ये है कि दवाएं हैं अभी। हेपेटाइटिस बी की भी टैबलेट्स की फॉर्म में, हेपेटाइटिस सी की दवाएं पहले इंजेक्शन होते तो लोग उससे डरते थे और वो अल्टीमेटली सिरोसिस या लिवर फेलियर की तरफ चले जाते थे। इस वक्त टैबलेट्स अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ 3 महीने या 2 महीने की, 2 तरह की दवाएं जो 3 महीने या 2 महीने में, द क्योर रेट हैज़ गॉन अप टू 98% ऑलमोस्ट, 98 to 99%। तो इतने अच्छे क्योर रेट के साथ और उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी ना होने के बराबर हैं तकरीबन। सही है। तो वी एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह ये नीचे आएगा। लेकिन हम इस हद तक पहुँचे ही क्यों ज़रा कुछ, हाँ ये चीज़ ज़रा अगर डॉक्टर साहब ये बताएं कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ। इसकी बेसिक इस बीमारी तक पहुंचने में क्या अवामिल कार फरमा होता है? गंदा पानी या फिर खाना? देखें, हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को कहते हैं कि वरम हो जाए, सूजन हो जाए। और यही एक सेल लेवल पर अगर आप बात करें तो सेल फूलना शुरू होता है, सेल पे टूट जाता है और उसके जो एंजाइम्स या केमिकल्स हैं जो सेल के अंदर होते हैं वो लीक होते हैं ब्लड में, जिसको हम पकड़ते हैं कि जी LFT ख़राब हो गया, SGPT बढ़ गया, ALT जिसको आप कहते हैं बढ़ गया। जैसे आपने बात की कि पानी या कोई और अवामिल, उमूमी तौर पे हम उसको गर्दानते हैं हेपेटाइटिस A, B, C, D, E एंड आगे तक, लेकिन ये E तक हम कॉमन लेते हैं। हेपेटाइटिस A और E जैसा आपने कहा गंदे पानी गंदे खाने से फैलता है। अच्छा। लेकिन उसकी अच्छी बात ये है कि वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या लिवर फेलियर में बहुत कम, लेस दैन 1% में लिवर फेलियर में जाता है और उमूमी तौर पे सिम्टोमेटिक रहता है और उसके बाद खुद ही कोई स्पेसिफिक इलाज की ज़रूरत नहीं होती, चंद हफ्तों में सेटल हो जाता है बंदा और वो उसके पेचीदगियाँ नहीं होती बाद में। एक दफ़ा हो गया, ख़त्म हो गया। एंड दैट B, C और D ये तीनों जो हेपेटाइटिस है ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस में तब्दील होते हैं और ये चलते रहते हैं। अच्छा। और उसके बाद जाके 10-15 साल में सिरोसिस या लिवर फेलियर करते हैं और आगे जा कर के फिर आपको ट्रांसप्लांट या लिवर कैंसर में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है डॉक्टर जाहिद आज़म साहब, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि इनकी स्टेजेस होती हैं और फिर इनका इलाज भी स्टेजेस वाइज ही होता है। क्या इससे रिकवर होना मुमकिन है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि हम ये कहें कि स्लम्स एरिया में रहते हैं, उनका ये कहना है जी कि इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप इससे रिकवर तो हो ही नहीं पाते। मैंने बहुत सारे खुद ऐसे लोगों बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो जिनका कॉन्सेप्ट ये होता है। देखें, जो लास्ट ईयर तक का जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम था वही था फाइंड द मिसिंग मिलियन। सिम्टम्स कोई नहीं होते। कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट आएंगे जो कि ट्रैवल कर रहे हैं जॉब के लिए, उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग हुई तो SGPT बढ़ा है, फर्दर टेस्ट हुए तो हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C आ गया। सिम्टम्स कोई नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिम्टम्स आपको जब आते हैं जब आपका सिरोसिस हो जाए, जब लिवर श्रिंक हो जाए, जब लिवर फेलियर होने लगे, जब सिम्टम, वरना आपके मेरी तरह हेल्दी लोग होते हैं। तो टेस्ट कराएं। और दूसरी ये कि आपको इलाज बिल्कुल है और बहुत अच्छा इलाज है। तो हेपेटाइटिस B और C का इलाज बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ बावर कर ले। पहले लोग डरते थे, इंटरफेरॉन का ज़माना था जिस वक्त इंजेक्शन लगते थे, अभी टैबलेट बहुत आसान है, हो जाएगा इलाज। अच्छा डॉक्टर साहब प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा, सबसे इसमें ख़तरनाक हेपेटाइटिस C है जिसे काला यरकान कहते हैं, ऐसा ही? आम तौर पे लेमन लैंग्वेज में लोग काला यरकान कहते हैं जिसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस, तो वो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि हेपेटाइटिस B और D ये दोनों बेसिकली D इनकम्प्लीट वायरस है, तो वो आपको नहीं लगेगा जब तक कि आपको हेपेटाइटिस B ना हो। अच्छा। तो आपका D तो B अगर है तो होगा, वरना D तो एक्सक्लूड हो गया। ठीक है। B के लिए अच्छी बात यह है कि बचाव है, 100% बचाव है वैक्सीनेशन।
और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 8-10 ईयर्स बैक, दिस वाज मुशर्रफ गवर्नमेंट, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था EPI प्रोग्राम, हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो बच्चों का पैदाइशी वैक्सीन लगाते हैं, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया था हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। तो इसकी वजह से अगर आपको हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हेपेटाइटिस बी को रोक लेता है। सही है। और चूंकि बी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात ये कि लिवर फेलियर नहीं होगा क्योंकि आपको हेपेटाइटिस बी नहीं होगा, और इट इज़ ऑल्सो द ओनली वैक्सीन जो कैंसर को प्रिवेंट करता है। ओके। क्योंकि हेपेटाइटिस बी सी से कैंसर बनता है और वो कैंसर को आप प्रिवेंट, तो बेसिकली जो माएँ बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो वो वैक्सीनेशन करवाएं। जो गवर्नमेंट की वैक्सीन है फ्री में मिल रही है आपको, ठीक है, या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है और नॉमिनल चार्जेस पर। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये पे, वो माएँ जो कि प्रेग्नेंट हैं, जब वो बच्चा डिलीवर करती हैं और अगर किसी माँ को ये इशू है, वो हेपेटाइटिस A B C D का शिकार है, तो ये बच्चे में भी ट्रांसफ़र होता है? देखिए, इसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के अंदर हो सकता है। हेपेटाइटिस सी में ये चांसेस बहुत कम है, लेस देन 1% है। अच्छा। हेपेटाइटिस बी में यस, लेकिन इसीलिए WHO रिकमेंड करता है कि आपको हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग, और हमारे यहाँ हम सी भी करा लेते हैं इसी वजह से कि हमारे पास 3 से 5% लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी है। तो प्रेगनेंसी में जैसे ही आपको पता चले कि वमन हामला है तो हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट सिंपल से 300-400 रुपये के गवर्नमेंट में फ्री हो जाएंगे, आपको वो कराएं। अगर खुदा न खास्ता किसी का बी पॉजिटिव आता है तो आपको 3rd ट्राइमेस्टर में, यानी आखिरी के जो 3 महीने रह जाते हैं, इसके अंदर एक दवा दी जाती है। तो वो दवा जो है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन, माँ से बच्चे को ट्रांसमिशन करने में रोकती है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप 3rd ट्राइमेस्टर में अगर आपका PCR पॉजिटिव है, वायरस है आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है माँ के, तो वो बच्चे को ट्रांसमिट होने से बचाएगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट यहीं पे अगर बात कर लूँ मैं, तो वो ये है कि ना सिर्फ ये, बल्कि मैं अपने पेशेंट्स को इस तरह कहता हूँ, बीइंग मुस्लिम, अगर हम तैयारी करते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको गुस्ल कराया और फ़ौरन से अजान दी, मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि उसी जल्दी आप करें वैक्सीनेशन लगाने की और इम्यूनोग्लोबुलिन। तो एक तो आपने प्रिवेंट किया दवा से 3rd ट्राइमेस्टर में। दूसरी बात ही, जो हामला औरत जिसको बी है, उसका बच्चा जब पैदा होता है तो विद इन फ्यू आवर्स, उसको विद इन 6 आवर आइडली आप वैक्सीनेशन लगाएं। एक बाजू में हेपेटाइटिस बी से बचाव की और दूसरे बाजू में इम्यूनोग्लोबुलिन, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन चंद हज़ार रुपये की आती है। इम्यूनोग्लोबुलिन गवर्नमेंट में फ्री मिल जाती है, तो वो लगाएं। इससे अगर आपने ये काम कर लिया तो तकरीबन ना होने के बराबर चांसेस होते हैं बच्चे में हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होने के, वर्टिकल ट्रांसमिशन। डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट को फॉर से हुआ है 10 साल पहले, 15 साल पहले, और वो रिकवर हो गया है, हैप सी है, हैप बी है, क्या चांसेस हैं कि वो दोबारा आ सकता है? बिकॉज अगर कोई भी पेशेंट कहीं जाता है कोई किडनी स्टोन वगैरह के लिए, उसका पहले वर्कअप कराया जाता है ना, तो क्या चांसेस है कि ये रिकर हो? फैसल, इसमें ऐसा है कि हेपेटाइटिस बी के लिए हम ये कहते हैं, वंस हेपेटाइटिस बी इज़ ऑलवेज हेपेटाइटिस बी। एक दफ़ा आपको हेपेटाइटिस बी हो गया तो इट्स नॉट गोइंग टू क्योर। पूरी लाइफ में लेस देन 1% चांस है कि वो नेगेटिव हो जाए स्पॉन्टेनियसली। तो इसलिए आपका, और ये डायनेमिक वायरस है, आपका इम्यून सिस्टम पे काम करता है। अगर आपका किसी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग कैरियर होते हैं, दवा की ज़रूरत नहीं होती बी में। सी में जहाँ तक बात करें, सी की अच्छी बात ये, एक तो मैंने बताया कि इलाज बहुत अच्छा आ गया, 98-99% क्योर है सी का, 2 महीने से 3 महीने की दवा है। और अगर आपको सी को ट्रीट कर लिया आपने तो चांसेस ऑफ गेटिंग रिलैप्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगर आपका 3 महीने तक वायरस नेगेटिव रहा है इलाज के ख़त्म होने के बाद, जिसको हम सस्टेन वायरल रिस्पांस कहते हैं, तो आपको वायरस दोबारा नहीं आएगा। अच्छा। यस, हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो लोग परेशान होकर आते हैं हमारे पास कि जी डॉक्टर साहब ये दोबारा से आ गया। तो एंटीबॉडी तो ये बताती है कि आपको इन्फेक्शन हुआ था कभी लाइफ में और अभी दोबारा से इन्फेक्शन की वो अलामत है कि बॉडी ने आपके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई थी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, जैसे आपने कहा ना सिम्टम्स ऐसा कुछ होते नहीं है, बट फिर भी जो लोग घर में बैठे हमें सुन रहे हैं, कहाँ दर्द महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए? जिगर में दर्द है, बाजू में, आप वीक हो गए हैं, वेट आपका गिर रहा है, क्या सिम्टम आपकी बॉडी में आ रहे हैं, चेंजिंग्स आ रहे हैं, क्या आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है? देखिए, हेपेटाइटिस बी या सी जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, उसके अंदर आमतौर में बताया जैसे कोई सिम्टम्स नहीं होते। कुछ लोगों को नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कि जी थकावट है, अर्ली फटीगेबिलिटी, कि जल्दी थक जाते हैं, जी मैं आया ऑफिस से और मैं बस देर हो रहा हूँ, बॉडी एक्स वगैरह होते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार आ गया, दैट्स ऑल। तो हेपेटाइटिस बी सी के आमतौर पर उमूमी तौर पर कोई सिम्टम्स नहीं होते। ओके। तो इस वजह से आप बेहतर है कि हर कोई टेस्ट कराए। बी के लिए तो सबसे अच्छी बात ये मैं सब आपकी तवज्जो से कहूँगा कि जी वैक्सीनेशन इज़ दी ओनली प्रिवेंशन, क्योंकि बी हमेशा, अगर खुदा न खास्ता हुआ तो हमेशा रहेगा और उसमें एक और वायरस का
डर भी आ जाएगा डी का डेल्टा जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर खुदा न खास्ता चीज़ बिगड़ती है, हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कि जो खराब मैलिग्नेंट खराब लिवर कैंसर आम अल्फाज में आप कह लें, बिल्कुल बिल्कुल उस तरफ अगर जाते हैं तो पाकिस्तान में क्या शरह है उसकी, उससे वापस आने की क्या शरह है, रिकवरी की क्या शरह है, कैसी सहूलियात है हमारे पास? जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी के लिए मैं कहूँगा कि हम ये तजवीज़ करते हैं कि हर 6 महीने में अल्फ़ा फीटोप्रोटीन एक कैंसर का टेस्ट है वो कराया जाए और एक गुड क्वालिटी अल्ट्रासाउंड कराया जाए हर 6 महीने लाइफ लॉन्ग, चाहे आपको एक्टिव है बीमारी या आप कैरियर है, यानी आपको दवा की ज़रूरत है या नहीं है, लाइफ लॉन्ग बी के लिए आप कराते रहे। सो दैट ये रिकमेंडेशन इंटरनेशनली है कि आपको अगर खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस बी की वजह से कैंसर बनता है तो अर्ली पिक हो जाए। अर्ली पिक हो जाए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मसला ये है कि पिक अर्ली नहीं होता और फिर लेट जब आते हैं तो बहुत कुछ हम कर नहीं सकते ज़्यादा मरीज़ के साथ। तो बी के लिए तो ये है। सी के लिए ये है कि अगर आपको हेपेटाइटिस सी हुआ था, ट्रीटमेंट हो गई थी और आपको सिरोसिस यानी लिवर श्रिंक नहीं किया था, लिवर फेलियर नहीं था, कुछ करने की ज़रूरत है, ख़त्म हो गई बात, चैप्टर क्लोज। अगर किसी को सिरोसिस था और ट्रीटमेंट हुआ था यानी एडवांस लिवर डिजीज़ थी और ट्रीटमेंट हुआ था तो उनको भी हमने सर्वेलेंस कहते हैं कि हर 6 महीने पे अल्फ़ा फीटोप्रोटीन और अल्ट्रासाउंड के ऊपर रखें ताकि बचाव के लिए हम कर सकें। अगर किसी को हो जाता है तो उसमें हम सीटी स्कैन कराते हैं और उससे पता चलता है कि जी ये एक वाहिद वायरस है जिसमें बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती, आपको सीटी स्कैन बता देता है। फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं, लिवर रिसेक्शन कहते हैं कि ट्यूमर को निकाल दिया था काट करके, RFA रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या उसको जिस तरह आप माइक्रोवेव एब्लेशन कि माइक्रोवेव में जैसे आप खाना पकाते हैं तो उस तरह से ट्यूमर को नीडल्स के साथ जला दिया जाता है। काट तो उसी वक्त सकते हैं ना डॉक्टर साहब अगर वो मैलिग्नेंट है, बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट ये ना कि वो डायग्नोसिस होगी और उसके बाद फिर आप लिवर रिसेक्शन या ये सारी चीज़ें करेंगे। अगर एडवांस है तो फिर हम टेस्ट कहते हैं ट्रांस आर्टरी की मोबिलाइजेशन। एक जैसे एंजियोग्राफी में दिल की शरीयान बंद हो जाती है, वहाँ पे दिल की शरीयान को हम उल्टा बंद कर, जिगर की शरीयान जो कि सप्लाई कर रही है वेसल कैंसर को, उसको बंद करते हैं। अच्छा। और उसके बाद वहाँ पे दवा भी देते हैं कैंसर के, बंद करते हैं तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि दवाएँ हैं, अगर वो भी नहीं हो सकता, टेस्ट कहते हैं ट्रांस आर्टरी की मोबिलाइजेशन, वो भी नहीं हो सकता, फिर दवाएँ हैं जो ओरल टैबलेट्स हैं 2-3 किस्म की जो आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ट्रांसप्लांट भी जिगर की तब्दीली का ऑपरेशन जिसमें आपका जिगर निकाल के आपके करीबी लवाहिकीन में से किसी का जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो वो लगाया जाता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसप्लांट। लिवर कैंसर या सिरोसिस एडवांस हो जाए, दोनों चीज़ों में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। लिवर कैंसर के अंदर भी और उसमें भी। तो ट्रांसप्लांट एक ख़त्मी इलाज है जिससे आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती है और आप नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि क्या ये इस तरह से हो सकता है जैसे कि आपके फादर या ग्रैंडफादर को ये हुआ, उसके बाद आपने देखा जी कि हिस्ट्री में अच्छा ठीक है आपकी फैमिली में किसी को होगा, फिर नेक्स्ट 3rd या 4th जनरेशन में हमने ये देखा, ये इस तरह से चलता? नहीं, ये फैमिलीज में इस तरह से नहीं चलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा ही गया कि अगर मैं हम एडवाइस ये करता है कि किसी फैमिली में किसी को है तो जितने लोग उस फैमिली में हैं वो स्क्रीनिंग करा लें। देखिए हमारे अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं ब्रीच हो रहा है इन्फेक्शन में कि इस्तेमालशुदा नीडल लग रही है, ड्रिप इस्तेमालशुदा लग रही है। हमारे यहाँ एक खासतौर पर इस्लाम एरियाज के अंदर दुकान पे आप जाएं वही कैंची और वही उस तरह इस्तेमाल होता है, बिल्कुल वही वो गंदा गिलास है जो कि कूलर पे रखा हुआ है, गिलास से नहीं होगा, आपको वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है तो बी और सी आपको यस आप हमेशा बार्बर के पास, आप नाई के पास जाएं तो हमेशा ये कहें कि जी नया ब्लेड लगाएं, ठीक है। इस्तेमालशुदा सिरिंज या ब्लेड या इस तरह से फीमेल्स ब्यूटी पार्लर्स में जाती हैं, टैटूइंग है या मैनिक्योर पेडिक्योर जिसमें शार्प्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके नाक कान छिदवाते हैं आप, तो उसमें आप ख्याल करें कि ऐसा ना हो कि इस्तेमालशुदा नीडल या वो शार्प्स यूज़ ना हो, और अगर वो कर रहे हैं तो स्टेरिलाइजेशन हो उसकी। इसी तरीके से ऑपरेशंस वगैरह जो है उसके अंदर भी प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होनी चाहिए जिसके बाद ताकि वो यहाँ पे कहीं पे भी इस चीज़ में ब्रीच आएगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे इस मरज़ को रोका जाए कि जो तो उसमें हमारी जाहिर सी बात है रोज़मर्रा की डाइट भी बड़ा असर करती है। मैं चाहूँगा जैसे अगर किसी को एफ हो जाए कहते हैं कि जी वो आप गन्ना जूस ना पिएं, चूस के खाएं, इसमें कितनी सदाकत है? क्या फूड आइटम्स होने चाहिए कि जो हेपेटाइटिस ए और ई जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है उसके साथ ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन लिवर की हो जाती है, लिवर फेलियर की तरफ जा रहा होता है, लिवर स्टोर हाउस है शुगर का। तो कॉन्सेप्ट एक है हमारा पुराना कि जी शुगर कम होगी तो आप गन्ना ले लें या गन्ने का जूस ले लें, लेकिन आपने अगर देखा होगा कि गन्ना के जूस जिस गंदगी से हमारे अनफॉर्चुनेटली आम सड़कों पर जिस तरह हो रहा होता है ना वो धुलता है
खेतों में जो होता है वहाँ पे सारी पिशी पॉटी लोग उसके अंदर जाके करते हैं और वो वहाँ से एज इट इज आता है, क्योंकि अगर वो धुलेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट गलत है। सफाई का ख्याल रखें। आप घर में कुछ भी आप घर में लेके आ जाए, गन्ने को धोएं, गंडेरिया बना के खा लें, कुछ कर लें, आई हैव नो प्रॉब्लम। जरूरी नहीं गन्ना ही खाएं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है सफाई का ख्याल। और एक आखिरी चीज़ बड़ी कॉमन डिजीज़ हो गई है फैटी लिवर। जी बिल्कुल, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये कितना ज़्यादा शराकतदार है हेपेटाइटिस में? हेपेटाइटिस का जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन है लिवर, इसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी स्टेटस हेपेटाइटिस या नैश, कि वो लोग जो लोग अल्कोहल नहीं ले रहे, क्योंकि सबसे कॉमनेस्ट वजह दुनिया में, हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ है। अल्कोहल की वजह से लिवर फेलियर होता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि नैश या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो कि फ़ैट कंटेंट आपका बढ़ता चला जाता है और उसकी वजह से फ़ैट एक्यूमुलेट होता है लिवर सेल के अंदर। फैट की वजह से लिवर सेल फूलता है और वो टूट जाता है और वो और डैमेज होते होते। जिस तरह हेपेटाइटिस बी सी लिवर को ख़राब करता है, नैश भी उसी तरीके से लिवर को ख़राब करता है, सिरोसिस करता है, लिवर फेलियर करता है, एसाइटिस कहते हैं पेट के पानी को, वो करना, खुदनुदगी, बेहोशी होना, ये जो कॉम्प्लिकेशन लिवर डिजीज़ की है या कैंसर बनना, ये सब कुछ वो करता है। एक और चीज़ बताया चलो इसकी, जो आपने जैसे बताया कि क्यों होता है, इसकी जो कॉमनेस्ट वजह है, ये जो रिस्क फैक्टर कहूँगा मैं, कि वो जो रिस्क फैक्टर है वो ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की, जी आप वॉक वगैरह नहीं कर रहे, चलते फिरते नहीं हैं, मोटापा है, स्पेशली ट्रंकल ओबेसिटी, हमारा पेट निकल आता है, तो ओबेसिटी, मोटापा, ये सारी चीज़ें अवामिल हैं 5-6 जो कि फैटी लिवर की वजह से, जिस तरह जिसम में फ़ैट है वो लिवर में फ़ैट जमा हो रहा होता है और वो लिवर को डैमेज करता है, जिसकी वजह से ये पेचीदगियाँ होती हैं। अंदाज़ा ये है कि दुनिया में, और यही चीज़ पाकिस्तान में भी ट्रेंड है, कि हेपेटाइटिस बी और सी चूँकि दवाएं अच्छी आ गई हैं, दिस इज़ गोइंग टू गो डाउन और ग्रेजुअली फैटी लिवर ऊपर आ रहा है, और ये लिवर ट्रांसप्लांट और लिवर फेलियर का सबसे बड़ा कॉज आगे जाके ये बनने वाले चंद सालों में। लेकिन होपफुली कि आज जो लोगों ने सुना होगा वो इसको आप क्योर कर पाएंगे कि आपने बैठे नहीं रहना, अब थोड़ा सा मॉर्बिड नहीं रहना। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि प्लीज़ आपको कुछ भी फील हो ना, स्क्रीनिंग करा लें जाके। वो शक पे ना आप रहेंगे, हाँ हो सकता है अच्छा थोड़ा और ज़्यादा फील होगा मैं तब कर लूँगा, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, आपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। महंगाई हुई, कीमतें बढ़ी, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हुई, लेकिन इसका असर यहाँ नहीं पड़ा। आवाम परेशान है कि खाना हम कैसे बनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे खानों में तो बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में भी कुकिंग ऑयल की कीमतें इम्तिहान बन गई हैं। घर चलाने वाली ख़वातीन परेशान हैं कि इन कीमतों के साथ किचन का बजट कैसे पूरा करें, क्योंकि उनके नज़दीक कुकिंग ऑयल का कोई मुतबादिल नहीं है। दाल बनाएंगे, आलू बनाएंगे, जी भी बनाएंगे, तेल तो चाहिए ना। बंदा करे क्या, पानी में सालन बना के खाए? ना पतला बन सकता ना गाढ़ा बन सकता, जब तक तेल घी नहीं होगा, समझे, कुछ भी नहीं बन सकता। शायद कुकिंग ऑयल से मुकम्मल गुरेज मुमकिन ना हो, मगर ये ज़रूर हुआ है कि तेल के इस्तेमाल को महदूद करने के लिए बेशतर घरों में ख़वातीन ने ऐसे खाने पकाना बंद कर दिए हैं जिनमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता हो। घर में क्या नहारी कौरमे पाए? नहीं, ये नहीं बना रहे। तो क्या बनाती है? ये सब्जियां वगैरह बना दे। खाने का तेल पहुँच से बाहर है, पहुँच से बहुत ज़्यादा बाहर है। जितनी ऑयली चीज़ें थी सब बंद कर दी हैं। एक तो हार्ट पेशेंट हो गए, ऊपर से महंगा इतना हो गया कि आप पानी में पकाएं और खा लें उबाल के, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं बनेगा। पहले से ही मैंने कह दिया अपने बहू को, बेटा सब खत्म कर दो, घी इतना महंगा। आप यकीन करिए 2 दिन 3 दिन पहले जब मुझे तेल का पता चला है, मेरे सर में इतना शदीद दर्द है, मैं घर में मैं सर पकड़ के बैठी हुई थी। जिसमें कम तेल होगा वही खाएंगे ना हम तो। वो थोड़ी देखेंगे कि हम मुर्गे मुसल्लम खाएंगे बड़े आदमियों की तरह टेबल सजा कर। सब्जी नहीं पका सकते, टमाटर की चटनी पे गुजारा कर रहे। इस मामले पर हमने मारूफ शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट शाजिया नूर से बात की तो उन्होंने मुतबादिल खानों की तवील फहरिस्त पेश कर दी और सेहत के लिए भी इन्हीं खानों को बेहतर करार दिया। हमारे पाकिस्तानी खाने बहुत ज़्यादा ऑयल डलता है, तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को कहती हूँ, लोगों को समझाती हूँ कि ऑयल कम से कम यूज़ करें, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा नहीं है। आप ऐसी डिशेस बनाएं घर में जिसमें कम ऑयल डलता है। आप हलीम बना लें, आप वेजिटेबल्स बना लें, मसूर की दाल, माश की दाल, चने की दाल, आप ये सारी दालें, आप काली दाल
और उसमें ऑयल कम यूज़ होता है। आप 1 टेबल स्पून डालें, ज़रा सा भगार करें, दाल उबलेगी, पकेगी और वो खा लें, उससे ग़िज़ायत उसकी गोश्त की मिलेगी वही आपको। फ्राइड राइस कर लें जिसमें वेजिटेबल्स डलते हैं और उसमें ऑयल बहुत कम डलता है, 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून होता है। चाइनीज़ डिशेस होती हैं, वेस्टर्न डिशेस भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आपकी दस्तरस में आ सकती हैं। कुकिंग और न्यूट्रिशन की माहिरीन ये भी समझती हैं कि ख़वातीन तेल के इस्तेमाल का तरीका बदल कर भी बजट और सेहत दोनों का भला कर सकती हैं। जहाँ पे हम चमचों के साथ या डोंगों के साथ या कप के साथ तेल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब हम उसको स्प्रे ऑफ ऑयल के तरीके से इस्तेमाल कर लें और वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर दालों का इस्तेमाल और सब्जियों का इस्तेमाल तरीके से किया जाए तो बॉडी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन भी रह सकती है, डाइट भी बैलेंस्ड हो सकती है और तमाम ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। महंगे महंगे ऑयल, महंगी महंगी जितनी भी चीज़ें हैं मार्केट में, ये सब उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है ख़रीदनी। जो गोश्त होता है उसके साथ चर्बी होती है और चर्बी आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप कुक करते हैं उसको तो उसका ऑयल भी वो सिक्रीट करता है, तो वो ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे आप ऑयल कम डालें और वो ऑयल आ जाता है तो वो आपकी काफ़ी है आपके लिए, जितनी आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा ऑयल डालेंगे तो आपकी सेहत पे इफ़ेक्ट आएगा। माहिरीन की गुफ्तगू ये बताने के लिए काफ़ी है कि तेल महंगा ज़रूर है, मगर उसका इस्तेमाल कम करने के तरीक़े भी मौजूद हैं जिन पर अमल करके घरेलू बजट पर होने वाले असरात को महदूद किया जा सकता है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अच्छा जी, रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। अब आप कह रहे होंगे जी ये खाना जो है कम तेल में कैसे बनाएं? ये बन सकता है अगर हम बनाना चाहें, क्योंकि अभी इससे पहले हमने हेपेटाइटिस की बात की, हार्ट पेशेंट्स की बात हम करते हैं। और हेपेटाइटिस कहा जाता है ज़्यादातर जो ऑयली फूड है ना, ऑयली फूड वो उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके लिवर को ये सारा मामला पूरा जाके अटैक करता है ये। अच्छा फैसल, एक चीज़ है, हम अब स्पेशली आई डोंट नो कि इस तरह से मैंने अभी कराची में इतने खाने नहीं खाए, लेकिन पंजाब में जब तक आपके वो पाए या निहारी वाले उसमें प्याले में ऊपर ऑयल ना तैरता नजर आ रहा है। कराची में खाने नहीं खाए, इतने खाने नहीं खाए ना, ये वाला अभी मैंने पाए कराची की और निहारी मैंने नहीं खाई, तो जब तक वो प्याले में ऑयल ऊपर तैरता हुआ नजर नहीं ना आता, आप मुझे बता रही हैं कि टीम को, मैं टीम को बता रही हूँ और जो देख रहे हैं मैं उन्हें बता रही हूँ। तो प्लीज़ ये अगर प्लेट में ऑयल है और आप कहते हैं कि अब खाना मज़े का, तो ऐसा नहीं होता। कम तेल में भी खाना अच्छा पक सकता है, ये हकीकत है। और ये हकीकत कैसे है, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारी जो शेफ़ है मायदा, वो हमारे साथ मौजूद होंगी, वो भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इससे पहले हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो हमारा एक स्पेशल किचन है उसका हम रुख करेंगे और मायदा वहाँ मौजूद होंगे, हमें गाइड करेंगी कम तेल में खाना कैसे पकाना है। ब्रेक के बाद ऑयल को ब्रेक लगाएंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस्लामी साल का पहला महीना है मुहर्रमुल हराम। कायनात की तख्लीक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हज़रत यूनुस की मछली के पेट से रिहाई, किश्ती नूह का ठहरना, फ़िरौन का दरियाए नील में गर्क हो जाना, मूसा कलीमुल्लाह की कामयाबी से लेकर नवासे रसूल की शहादत तक दीन इस्लाम के अहम मामलात इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रमुल हराम में ही अंजाम पाए। तो मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जिनका यौम शहादत भी है। अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत जिसके लिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। तो इन दोनों मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही हमारे अज़ीज़ मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और आज क्योंकि जो है वो दो बड़े अहम मौज़ूआत हैं, तो सबसे पहले जो है वो हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हम मुख्तलिफ़ अपने जो है वो आइडियल्स बनाते रहते हैं। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि फ़लाँ हमारा हीरो है, फ़लाँ हमारा हीरो है, लेकिन असल जो हमारे मज़हबी हीरोज़ हैं उनकी तरफ हम जो है तवज्जो नहीं फरमाते। मैं चाहूँगा कि उनकी सीरत के हवाले से ज़रूर आप कुछ फरमाइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी पूरी टीम का, कि चंद कलिमात के लिए मुझे मौका दिया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि आप इस्लामिक हीरोज़ हैं और ऐसे हीरो हैं कि जिन जैसा कोई और नज़र नहीं आता। और ये हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और आपके फैज़ और तज़किया का, तालीम और तरबियत का,
शाहकार है कि आपकी सोहबत में बैठने वाले जिस किसी हस्ती को देखते हैं वो अपनी मिसाल आप नज़र आता है और उन जैसा कोई और नज़र नहीं आता। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप की शहादत के बारे में ये है कि आपके ऊपर जो अबू लुअलु फ़िरोज़ नामी एक शख्स ने जो हमला किया नमाज फ़जर के अंदर, वो ज़िलहज की आखिरी तारीख़ों में था और मारूफ़ रिवायत के मुताबिक आपकी तदफ़ीन चूँकि पहली मुहर्रमुल हराम को हुई, तो इस एतबार से पहली मुहर्रमुल हराम को आपका यौम शहादत मनाया जाता है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दुआ किया करते थे और वो दुआ बड़ी अजीब थी कि बारी ताला मुझे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मौत अता फरमा और मुझे अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमा। तो कई बार सवाल करने वालों ने आपसे पूछा कि शहादत तो होगी सरहदों पर, जब आप जाके कहीं लड़ें, और चूँकि जो मुस्लिम शूरा थी उन्होंने ही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोका था कि आप जिहाद के लिए सरहदों पे ना जाएं, आपकी यहाँ कैपिटल में ज़रूरत है। तो फिर किसी दिन जब ये पूछा भी आप बाहर आप वहाँ जाएंगे नहीं तो यहाँ शहादत कैसे होगी, ये तो अमन है और हरम है। तो आप अर्ज़ करते थे कि मुझे चूँकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत अता फ़रमाई है शहादत की और मेरा शौक़ भी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा कादिर मुतलक है कि मुझे यहीं रहते हुए वो शहादत अता करना चाहे तो कोई बईद नहीं। तो ऐसा ही हुआ कि वो उस शख्स ने आपके ऊपर अटैक किया। तो ये ज़ुल्हज की आखिरी तारीख़ें थीं और उसमें रिवायात में फ़र्क आता है। बाज़ ने कहा कि ज़ुल्हज से 3 या 4 दिन पहले, बाज़ ने कहा कि यकम मुहर्रमुल हराम। तो इन तारीख़ों के एतबार से अब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब हम सीरत को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो आपने अपने ज़माने खिलाफत के अंदर इनिशिएट की और इस सब्जेक्ट को इस्लामी तारीख़ के अंदर कहा जाता है अव्वलियात उमर, यानी वो तमाम काम जिन्हें ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया। वो मसलन आपने फ़ौज का मुजाहिदीन का निज़ाम वज़ा किया, उनके लिए बहुत सारे कवानीन बनाए। अच्छा, इसी तरह जेलें आपने बनाई, पुलिस का निज़ाम बनाया, डाक का निज़ाम बनाया और इंतज़ाम व इंसराम के एतबार से देखिए रियासत मदीना को 22.5 लाख मुरब्बा मील तक वसी कर दिया। और अदल और इंसाफ का आलम ये है कि आप फरमाते हैं कि अगर फ़ुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी मर जाए भूखा तो उमर अपने आप को उसका जवाबदेह समझता है। क्या बात है। यानी अदल और इंसाफ और हुक्मरानी का ये आलम है। और जब आपकी शहादत होती है तो आज हमारे लिए इसमें मैसेज है कि आपकी शहादत होती है और अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को बुलाकर फरमाते हैं कि जो मेरे ऊपर कर्ज़ है वो मेरे असासा जात से पूरा करने की कोशिश करना, ना हो सके तो जो हमारा कबीला है बनु अदी, फिर उनसे रिक्वेस्ट करना कि वो मेरा कर्ज़ अदा करें, और अगर फिर भी पूरा ना हो सके तो फिर कुरैश से लेना, और अगर फिर भी पूरा ना हो तो कुरैश के अलावा किसी और को तकलीफ़ नहीं देनी। 22.5 लाख मुरब्बा मील पर मिसाली हुक्मरानी, ये है आपकी शान और अज़मत कि दुश्मन कांपता है आपके नाम से। और अदल और इंसाफ और दयानतदारी का ये आलम है कि रियासत के मालिक होते हुए आप मकरूज़ हैं और इस हाल में आप दुनिया फ़ानी से रुखसत होते हैं। ये वो किरदार था जिसकी वजह से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये शान और अज़मत भी अता फरमाई। क्या बात है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने अदल और इंसाफ की और क़वानीन की बात की। आज भी हज़रत उमर फ़ारूक के बनाए हुए ये क़वानीन यूके में हम देखते हैं कि पढ़ाए जाते हैं बाकायदा। जी बिल्कुल। लेकिन हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पर हम वो क़वानीन देखते नहीं हैं, यहाँ पर ना हमें पढ़ाए जाते हैं। बहैसियत मुसलमान हमें पढ़ाए जाने चाहिए। और हमारी जो मौजूदा इस वक्त सियासी निज़ाम है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इस खिलाफत से, इस तरीक़े खिलाफत से, इन क़वानीन से, लेकिन बदकिस्मती है कि हम सीखते नहीं हैं। यकीन अनफॉर्चुनेट ऐसे ही है। और जैसा आपने ये कहा कि यूके या आलम मग़रिब उमर लाज के नाम से बहुत सारी उनकी इस्लाहात ऐसी हैं जो उन्होंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हासिल की। और हमारा अलमिया ये है
कि हमसे दुनिया सीख कर कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और जिनका असासा था अपना, तो हमारी हालत ये है कि हम उसे भुलाए बैठे हैं और उसे अपनी अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए हम ज़वाल का शिकार हैं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और फिर खुलफ़ाए राशिदीन ने कुरान और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को जिस तरह प्रैक्टिस करके दिखाया और उसे एक ज़मीनी हकीकत बना दिया, तो वो वही तर्ज़ हुक्मरानी ही मुसलमानों के लिए आइडियल है। और जब तक हम उसी राह पर नहीं चलेंगे तो ये जितने मसाइल हैं हमारे, ये सब उसी का पैदा करदा है। तो लाजिम है कि हम उनसे सीखें और उनकी राह पे चलें, ताकि आने वाली नस्लों को इस्लाम का एक अच्छा इमेज जाए। वरना नाकामी मुसलमानों की होती है और इल्ज़ाम इस्लाम पर आता है। खूबसूरत बात। किरदार मुसलमानों का होता है काबिल एतराज़, और एतराज़ इस्लाम के ऊपर जाता है। तो हम नंगे इस्लाम हो गए, ये है हमारा किरदार, और वो अज़मत इस्लाम कहलाए, ये उनका किरदार। और जब अज़मत की बात करते हैं तो कुर्बानी से, उस कुर्बानी से अजीम क्या है कुर्बानी होगी जो इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए दी गई। अब दूसरे मौजू की जानिब बढ़ते हैं कि जो कि बहुत ही मुबारक महीना मुहर्रम अल हराम का। मुफ्ती साहब, खुदा ताला ने अपनी बुज़ुर्गीदा हस्तियों से वो काम लिए, और वो काम लेने के बाद हम जो आने वाली नस्ल है उसको जो है ये पैगाम दिया कि ये सिंबलिज़म है, इससे सीखा जाए। मुहर्रम का ये महीना, कुर्बानी का महीना, हुसैन का महीना, क्या फरमाएंगे इस हवाले से, क्या सिंबल है हमारे लिए इसमें? हाँ, यकीनन देखिए कि जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि हम इस्लामी महीनों को देखते हैं तो उसका इख्तिताम भी कुर्बानी पर है और उसकी इब्तिदा भी कुर्बानी पर है, और वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जिसकी याद मनाई जा रही है, और ये नवासा रसूल, जिगर गोशे बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके पूरे ख़ानवादे की कुर्बानी है, आपके असहाब की कुर्बानी है। तो यकीनन इससे जो हमें सबक हासिल होता है अपनी ज़िंदगियों में, एक तो ये कि मुसलमान की शान ये है कि वो कभी आसाइशों, आसानियों या सहूलियात से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो हमेशा हक़ से मोहब्बत करता है, चाहे उसकी राह में उसे जान से ही क्यों ना गुज़रना पड़े। दुनियावी सहूलतें, आसाइशात, मफादात तो कोई माना ही नहीं रखते। मुसलमान मोमिन की शान ये है कि वो अपनी जान भी हक़ की खातिर कुर्बान करता है। और इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, आपने जिस वक्त क़याम फरमाया, इसे बहुत सारे लोग जो अहले बैत अतहार के बारे में थोड़ा तंग नज़री रखते हैं तो वो इसे खुरूज का लफ्ज़ कहते हैं। मैं कहता हूँ कि ये इमाम अली मुकाम के इस अजीम कुर्बानी को आप खुरूज कह के तो उनकी नाकदरी मत कीजिए। ये खुरूज नहीं, ये क़याम था। ये क़याम हक़ होता है। जब आपके सामने बातिल हो तो उस बातिल के को ललकारना, उसके सामने आवाज़ बुलंद करना, हक़ का कलिमा कहना, इसे खुरूज नहीं कहते, इसे क़याम कहते हैं। तो इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, आपने क़याम फरमाया। अच्छा, जब आपने क़याम फरमाया और देखिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी शहादत की ख़बरें दे चुके हैं। हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप भी जब एक जंग से वापसी पर तशरीफ़ ला रहे थे तो यहाँ फ़ुरात के किनारे से गुज़रे तो आपने बाकायदा अपने असा मुबारक से निशानदही फरमाई कि यहाँ उनके कजावे रुकेंगे, यहाँ उनके लाशें गिरेंगे और यहाँ उनकी शहादतें होंगी। तो किसी ने पूछा ये किसका ज़िक्र है? फरमाया मैं अपने ही ख़ानदान का जिक्र कर रहा हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि हम अहले बैत अतहार के लोगों को ये बात मख्फी नहीं थी कि इमाम हुसैन की शहादत होगी, हत्ता कि कहाँ होगी, किस साल में होगी, किस सन में होगी, ये भी जानते थे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस बारे में एक मारूफ़ रिवायत है। आप फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतना कुछ सुन रखा है कि उसका एक हिस्सा मैं बताता हूँ और दूसरा हिस्सा मैं नहीं बताता। अगर मैं वो बताऊं तो मेरी गर्दन यहाँ हलक से काट दी जाए। और फिर आप सन 60 हिजरी में जब पहुँचे तो आप अल्लाह के हुजूर पनाह मांगते थे कि बारी ताला मुझे सन 61 हिजरी से सन 60 हिजरी से मुझे सन 60 हिजरी के जुल्म से पनाह अता फरमा और मुझे उसका सूरज न दिखा, हत्ता कि आपकी का विसाल हो गया। और सन 61 हिजरी पहला महीना, इसमें इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होती है। तो कहने का मकसद ये है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत
मारूफ थी और आपकी शहादत की खबर तो आका अलैहिस्सलाम ने आपकी विलादत से भी पहले अता फरमाई और मारूफ रिवायात और हदीस में ये बात मौजूद है। तो फिर भी आप करबला की तरफ किस तरह खींचे चले जा रहे थे, वो क्यों था? इसलिए कि अगर उस वक्त जबर और इस्तिबदाद के सामने और फासिक हुकूमत के सामने अगर इमाम हुसैन भी खामोशी इख्तियार कर लेते तो आज किसी को हिम्मत न होती किसी बातिल के सामने खड़ा होने की। तो इमाम अली मुकाम ने क़यामत तक के लिए इस्लाम को ज़िंदा कर दिया, दीन को ज़िंदा कर दिया और अहले हक़ को वो हौसला दिया कि क़यामत तक वो कुर्बानियाँ देते रहेंगे और इमाम अली मुकाम की पैरवी करते रहेंगे। ज़बरदस्त मुफ्ती साहब, बेहद शुक्रिया वक्त गुज़ार करने के लिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अब आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और 2 दिन आपने क्या करना है, बेस्ट ऑफ नया दिन देखना है। अल्लाह हाफ़िज़।